Now we are discussing exercise 5.2 class 12th maths question number 6. Let y is equal to, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी थी cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5. हमने सपोज कर लिया दिस y is equal to this. Then differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. We know that this and this both are two functions and product of first and second. Then we use product rule. By using product rule, differentiate with respect to x. This dy by dx. First function as it is cos x cube and ddx of sin square x raised to power 5 plus sin square x raised to power 5 as it is and ddx of cos x cube. Now cos x cube as it is, this differentiation of this, पहले power 2 then sin x raised to power 5 then ddx of sin x power 5 by chain rule, and then sin square x raised to power 5 ddx of this x cube, ये x का क्यूब है, this cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, so this derivative of this minus sin x cube and ddx of x cube, the angle of cos. Then cos x cube into 2 this sin x power 5, sin का डेरिवेटिव cos x raised to power 5 and ddx of x raised to power 5, एंगल का डेरिवेटिव, and then sin square x raised to power 5, यहाँ पे इस माइनस को आगे ले आते हैं, this sin x cube into 3x square, and next cos x cube 2 into cos x cube sin x raised to power 5 into cos x raised to power 5 into 5 x raised to power 4. Differentiation of x raised to power 5 is 5 into x raised to power 4 minus sin square x raised to power 5 into sin x cube into 3x square is the differentiation of this. We use the formula of sin x 2 sin x cos x, this sin 2x, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos x cube 2 sin x raised to power 5 cos x raised to power 5 sin 2 sin x cos x, the sin 2x sin 2x raised to power 5 into 5x raised to power 4 minus sin square x raised to power 5 into sin x cube, यहाँ पे 3 कांस्टेंट ले लेंगे and x square into x is the differentiation of question number 6. And then question number 7, question 7, y is equal to 2 cot
x square, and differentiation with respect to x, dy by dx is equal to 2 into 1 by 2 root cot x square, and ddx of this, ddx of cot x square. dy by dx चेन रूल से हम कर रहे हैं इसको। जब कोई भी रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है दिस रूट एक्स, देन 1 बाई 2 रूट एक्स, हमने इससे पहले किया था, 1 बाई पावर 1 बाई 2 हो जाएगी, 1 बाई 2 में से -1 करेंगे पावर को तो वो नीचे आ जाएगी, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, एंड देन दिस 1 बाई रूट कोट एक्स स्क्वायर, दिस कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ddx ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर, dy by dx इज इक्वल टू दिस, कोट को हम चेंज कर सकते हैं कोस अपॉन साइन, कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर माइनस cos x square x square into 2x square. This term is 2x, sorry 2x only, 2x, differentiation of x square is 2x, then dy by dx square root of sin x square upon square root of cos x square, this term is negative इसके साथ में है, then -1 upon this, -1 upon this sin square x square into 2x, इस टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं इसके साथ, 3/2 पावर आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, और ये रूट में यही पावर रहेगी, और आप इसको एज इट इज भी इसको छोड़ सकते हैं। दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, बिकॉज दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस dy by dx इज इक्वल टू -2x upon square root of cos x square into square root of sin x square, एक पावर कम होगी तो sin x square. This is the answer of this question, sin x square. And then use the formula of 2 sin x cos x. This formula is 2 sin x cos x, जो हमारे पास 2 था, 2 भी हमने नीचे ले लिया इसके साथ ही, cos के साथ, this 2 and then 2 also, 2 cos sin, फॉर्मूले के अंदर आपके पास है। This step, again this step, dy by dx, dy by dx is equal to this term square root of sin x square upon square root of cos x square, and this term is minus
1 by sin square x square into 2x, and then this square root of sin x square, इस टर्म को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस रूट साइन x स्क्वायर, एक टर्म तो हमारे पास ये बन गई, दूसरी टर्म साइन x स्क्वायर, ये वन टर्म, एंड दिस विदाउट साइन, दिस साइन x स्क्वायर. अब हमारे पास ये तीनों मल्टीप्लाई होकर दिस टर्म, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे एक टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगी, दिस 2x, और ये टर्म नेगेटिव है हमारे पास. देन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर, एंड दिस टर्म माइनस 2x. तो रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम इस टर्म को, इस माइनस 2 रूट cos x स्क्वायर इंटू रूट sin x स्क्वायर into sin x square, this multiply to root 2. This formula is 2 sin x cos x, this sin 2x का formula बन जाएगा 2 root 2x upon square root of sin 2x square into sin x square. Please check the question. Minus 2 root x sin x square and square root of sin 2x square is the right answer. And then question number 8. Y is equal to cos root x. Differentiate with respect to x. Then dy by dx is equal to, cos का डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस साइन x, माइनस साइन रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट x. Then dy by dx is equal to minus sin x minus sin root x, and root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x and x का डेरिवेटिव 1. Then dy by dx is equal to minus sin root x upon 2 root x. Then dy by dx is equal to minus sin root x upon 2 root x is the differentiation of this term. Next question. Differentiation of question, differentiable क्वेश्चन निकालना है हमने. At x is equal to 1 एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है. Prove that the function f given by fx, question number 9, this fx is equal to mod of x minus 1 and x belongs to R and is not differentiable at x is equal to 1. x is equal to 1 पे ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है लिमिट f डैश x, डिफरेंशिएशन हमने एक पॉइंट पे निकालना है, f डैश a, f of x minus f of a upon x minus a
the definition of the function, then we use this left hand derivative and right hand derivative and then find the function is differentiable or not. First way, the function is modulus function. फंक्शन को ब्रेक करेंगे, fx फंक्शन हमारे पास है, दिस x minus 1 फंक्शन होगा कब, if x is greater than equal to 1, और ये फंक्शन नेगेटिव होगा x minus 1 if x is less than 1. तो हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को, जो f of x माइनस 1 है मोड में, तो उसको हमने ब्रेक कर लिया. ब्रेक करने के बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इज इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं. दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे चेक करना है हमने. देन f of x minus f of 1 upon x minus 1, and then limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon 1 minus h minus 1. अब फंक्शन को इस पे डिफरेंशिएट करेंगे, बताएंगे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है. देन लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन 1 माइनस h, 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये यूज होगा. देन लिमिट h टेंड्स टू 0, देन फंक्शन इज व्हाट, x minus 1, x minus 1 दैट मींस 1 minus h minus 1 f of 1 जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा 0 अपॉन 1 minus h minus 1. This cancel out to this, and this function limit 1 minus h 1 minus h के लिए हमने फंक्शन गलत लिया. दिस 1 माइनस h के लिए फंक्शन होगा नेगेटिव, दिस फंक्शन इज नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आएगा. यस, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस माइनस 1 प्लस h प्लस 1 अपॉन h, दिस कैंसिल आउट टू दिस, एंड लिमिट h टेंड्स टू लिमिट h tends to 0, this h upon minus h, this value is minus 1. लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे जो हमारी वैल्यू आई y minus 1. अगर हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव पे लिमिट -1 नहीं आती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x tends to 1 plus f of x minus f of 1 x minus 1, then limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 plus h minus 1, then limit h tends to 0, this function is this x minus 1 plus h minus 1, f of 1 पे फिर 0, and this cancel out to this h, this cancel out to this. Limit h tends to 0, h upon h, this value is 1. Left hand derivative is not equal to right hand derivative. The function is not differentiable at x is equal to 1. At x is equal to 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं हम. इसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी आपने निकालनी है. अभी डिफरेंशिएशन करेंगे
क्वेश्चन नंबर 10 का। Question number 10. Prove that the greatest integer function defined by fx is greatest integer function. Fx is equal to greatest integer function, and this function is lies 0 to 3 and 0 to 3 not included in this interval. This is the open interval. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन के अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो 0 और 3 के बीच में है, तो हम एट x इज इक्वल टू 1 और एट x इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इससे पहले आपने क्वेश्चंस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी, हमने उस टाइम पे भी बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट मींस इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी आपकी 2.7 इज इक्वल टू 2, दिस 2.1 इज आल्सो 2 एंड 2 भी 2 ही है। मतलब कोई भी आपके पास इसके अंदर इंटीजर है तो वो इंटीजर या तो अपने से लेस वैल्यू देगा या अपने इक्वल वैल्यू देगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे हम। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे, दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस देन f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1। हम लिमिट डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल के देखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। और फिर हम दोबारा से फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू 2, फिर एट x इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक पॉइंट पे मैं करता हूं, एक पॉइंट पे आप खुद करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो हमारे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन f of 1 minus h टेंड्स टू 0 1 minus h, 1 माइनस h यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस f of 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। अब हमारे पास जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस 1 माइनस h एंड दिस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। दिस वैल्यू 1 माइनस h के लिए वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 माइनस h, 1 माइनस h पे हमारी वैल्यू होगी कि ये वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी 1 से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस वैल्यू इज 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। आप देखेंगे 1 माइनस h का मतलब क्या है, h is small quantity like as 0.9, 0.09 और भी छोटी वैल्यू, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी तो ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो जाएगी। जब ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो जाएगी तो इसका इंटीजर 0 पे जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। एंड दिस वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस माइनस 1 से माइनस h कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस 1 by h and this value is infinity, this value is infinity। and then यहाँ पे आप दो टर्म को आप नहीं करते 0 by 0 फॉर्म को और infinity by infinity फॉर्म को, both are
इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर आपके पास ये वैल्यू आती है तो लिमिट को आपने दोबारा से चेक करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। बट यहाँ पे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तब हम उस की वैल्यू को इन्फिनिटी लिख सकते हैं। देन राइट हैंड डेरिवेटिव की बात अगर हम करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस देन fx माइनस f ऑफ 1 upon x minus 1, then limit h tends to 0, f of 1 plus h minus f of 1 upon 1 plus h minus 1, then limit h tends to 0, f of this 1 plus h, जो हमारे पास वैल्यू 1 plus h यहाँ पे this function, this greatest integer function 1 plus h minus f of 1 upon 1 minus h, this value is only h. This limit h tends to 0, this 1 plus h minus 1 plus h is 1 plus h, अगर हम 1 में कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पुट करते हैं x, जो स्मॉल वैल्यू, तो स्मॉल वैल्यू को अगर 1 में पुट करेंगे तो 1 प्लस समथिंग 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी और उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा 1 वैल्यू, 1 माइनस 1 अपॉन h, दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h, इस वैल्यू इज 0। लिमिट पुट करने से पहले ये 0/0 फॉर्म नहीं है, जैसे पहले ही 0 आ गई। अगर किसी भी वैल्यू को हम किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू 0 ही आएगी, दिस वैल्यू इज 0 एंड 0 इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। आप ट्राई योरसेल्फ एट x इज इक्वल टू 2, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। थैंक यू।